ছাব্বিশে জুন পাহাড়ে জিটিএ নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়েছে। সেই নির্বাচনের জন্য প্রশাসনিক তৎপরতাও শুরু হয়েছে। এর মধ্যে এই নির্বাচন বাতিলের দাবিতে বুধবার অনশন শুরু করলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং। এদিন বিমল গুরুং অনশন শুরু করলে তার পাশে রোশনগিরি সহ অন্যদের দেখা যায়। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য হলো, বিগত কয়েক বছর ধরে বিমল গুরুং এর রাশ আর পাহাড়বাসীর ওপর নেই। গোর্খা জনজাতির ভাবাবেগের দাবি থেকে এক প্রকার সরে এসে বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলছিলেন গুরুং। তার ফলে বিভিন্ন নির্বাচনে পাহাড়বাসী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেই বিষয়টি বুঝতে পেরে গুরুং তার হারানো জমি ফিরে পেতে গোর্খা সুরসুরির দিকে তাকিয়ে জিটিএ নির্বাচন বাতিলের দাবিতে অনশন শুরু করেছেন। আর তার অনশন নিয়ে চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। तो मैंने आगे ही घोषणा किया था, जब ये जीटीए का घोषणा हो जाएगा तब मैं अनशन में जाऊंगा। इसीलिए मैं आज से 11 बजे से मैं 11:09 से मैं अनशन में बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपील भी करना चाहता हूँ यही मंच से बंगाल सरकार को अपील करना चाहता हूँ। हमने दिए जो दस्तावेज, जो हमारा जो पहाड़ तराई डूवर्स का 396 मौजा के लिए जो हमने डॉक्यूमेंट प्लेस किया था, उसको सुनाई नहीं हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द सुनाई होकर इसको एक डायलॉग ओपन करे। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मिस ममता बनर्जी ने खुद ही बोला था कि पॉलिटिकल समाधान हम लोग करेंगे, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कह चुका है कि हम लोग करेंगे। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग का विश्वास नहीं, आस्था नहीं है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का तरफ हमने दस्तावेज प्लेस किया था, लेकिन उसने भी अनसुनाई कर रहा है। इसीलिए मैं ये अनशन में जा रहा हूँ। আবার নতুন করে গুঞ্জন শুরু হয়েছে যে গুরুং কি ফের বিজেপির সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলছেন। এই প্রশ্নে অবশ্য এদিন তৃণমূল নেতা তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বুধবার বলেন, পাহাড়ে শান্তি ও উন্নয়ন চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাহাড়কে ভালো রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় সকলেই জিটিএ ভোটে যাতে অংশ নেয় তার আবেদনই জানিয়েছেন গৌতম বাবু। না, অনশন নিয়ে যা বলা কলকাতা লিডারশিপ বলবেন, আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই, দেশে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে এবং পাহাড়ের মানুষ চায় শান্তি, উন্নয়ন এবং প্রগতি। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে পাহাড়ে এই উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে বিগত 11 বছর ধরে, এবং পাহাড়ে হিল ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, পরিকাঠামো উন্নয়ন, পর্যটন, কর্মসংস্থান সমস্ত ব্যাপারে প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু জিটিএ একটা বিধিবদ্ধ সংস্থা, যেখানে কেন্দ্র, রাজ্য এবং তৎকালীন জিজেএমএম তারা মিলিতভাবে একটা আইনের বিধিবদ্ধে এই তৈরি হয়েছিল জিটিএ। তার নির্বাচন অনেক দিন ধরেই ডিউ ছিল, মানুষ চেয়েছে নির্বাচন হোক এবং সেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখে নির্বাচনে সবারই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত। অপরদিকে সিপিএম এর নেতা জীবেশ সরকার বলেন, পাহাড়ে জিটিএ নির্বাচন অবশ্যই হোক, কিন্তু সবাই যাতে নির্বাচনে অংশ নেয়, একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ যাতে তৈরি হয়, সেদিকে রাজ্য সরকারের নজর দেওয়া প্রয়োজন। আমরা তো বলছি নির্বাচনটা হওয়া দরকার, কিন্তু নির্বাচন নামে নির্বাচন, একটা নির্বাচন হলো, দিন ঘোষণা হলো, কিছু নির্বাচনী আধিকারিক সেখানে বসলেন, কিছু লোক ভোট দিল, কিছু লোক দিল না, পরবর্তীকালে একটা অকার্যকরী একটা সংস্থা তৈরি হলো, সেটা তো মোটেই কাম্য নয়। আমরা নির্বাচনটা করার পক্ষে, কিন্তু যে পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে এই নির্বাচন কতটা সফল হবে এবং নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিটা দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পংয়ের মানুষের ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক হবে, তাদের যে আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে এটা কতটা সক্ষম হবে, এই ব্যাপারে তো প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বিজেপির সাংসদ রাজু বিস্ট এদিন ফের জিটিএ নির্বাচনের সমালোচনা করে পাহাড়ে পঞ্চায়েত ভোট কেন হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। देखिए, जीटीए कोई इलेक्शन नहीं है। जीटीए जो गिने चुने जो बंगालपंथी नेता हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनके लिए टेंडर का एक प्रोसेस है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या हमारे अलायंस पार्टी के साथ ही हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हम किसी तरह का जो है रोड बनाने का काम नहीं करते, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए हम भाग नहीं लेंगे। जीटीए ये असंवैधानिक एक बॉडी है, न इसके पास कोई पावर है, न ये कोई कानून बना सकता है, न ये कोई रूल को फ्रेम कर सकता है,
और ये गोरखा विरोधी भी है। और ममता दीदी गोरखाओं को लेकर वास्तव में ईमानदार है तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, आपने महकमा परिषद अनाउंस किया, फिर आपने पहाड़ में पंचायत चुनाव इलेक्शन क्यों नहीं अनाउंस किया? इसका अर्थ ये है कि इस जीटीए टेंडर के प्रोसेस के अंतर्गत 200 करोड़ में आप दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को खरीदना चाहते हो, सड़क पे उतरेंगे, कानून का सहारा लेंगे, लेकिन जीटीए चुनाव को होने नहीं देंगे। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि विमल जी हो या और कोई भी नेता या पार्टी हो जो गोरखा के हित में सोचेगा वो जीटीए के खिलाफ रहेगा, इतना मैं कह सकता हूं। और जहां तक विमल जी का सवाल है, कठिनाई थी, परिस्थितियां वैसी थी, लेकिन फिर भी ऐसे हमारे बहुत सारे नेता हैं, उनसे बहुत अच्छे ये मैं कह सकता हूँ। रही बात जीटीए नोटिफिकेशन, मैंने कल सुना कि शायद उसका नोटिफिकेशन आज जारी हो रहा है। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जीटीए न कभी हमारा विषय था, न कभी ये हमारा विषय रहेगा। और आज ममता दीदी बुलडोजर चला करके गोरखाओं के ऊपर में अन्याय करके जीटीए चुनाव कराना चाहती है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। जहां तक जीटीए का सवाल है, ये कोई चुनाव हो ही नहीं सकता। कोई चुनाव ऐसे होता है क्या जिसके कम से कम जो कॉलेज के चुनाव होते हैं उसमें ज्यादा रूल्स रेगुलेशन ज्यादा फॉलो होते हैं। यहाँ एक जो है एसडीओ बैठ के चुनाव करा लेता है और घोषणा कर देता है, और चुनाव वोट डालने के बाद 3 दिन तक जो है पता नहीं चलता कहाँ जाके काउंटिंग होगा, कौन उसको खोलेगा, कौन एजेंट होगा। सो ये सब जो है छलावा है। मैं इतना ही कहता हूं, जीटीए चुनाव न हो करके ये गोरखाओं को दोबारा से एक बार खरीदने के लिए ये एक टेंडर प्रोसेस है, और जो भी बिकने के लिए तैयार है मुझे लगता है उसके लिए इस टेंडर में भाग लेना चाहिए। जो नेता बिकने को तैयार नहीं है या जो जाति को खड्डे में नहीं डालना चाहता, मुझे लगता है उसको विरोध में खड़ा होना चाहिए।